Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comment box. Yesterday we have seen what is congruency, congruence in nature, congruence in simple mathematical figures, and then we came back to congruency of triangles. And I told you certain conditions of SAS word I gave you, side angle side, then AS word I gave you, then ASA I told you, ASA also I gave you. So Hindi words I gave you to remember, SAS, ASA and AS. That is how to find the congruency of a triangle using those conditions. Now let me continue from where I left. कहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे. आज मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा. तो बच्चों, हिंदी में एक कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, और ज्योमेट्री के सारे प्रॉब्लम्स उसी कहावत के ऊपर मानो बने हुए हैं. तो आप बोलोगे सर व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. भाई साहब, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि समझदार को इशारा काफ़ी है. इस तरह से ये जो 4 प्रॉब्लम्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो आपको इशारा देंगे. आपको देखना है कि आप समझदार हो क्या. सर आप ये क्या कह रहे हो, I'll prove it what I said. Now let me come to the first problem. पहले प्रॉब्लम की तरफ आएंगे और देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम क्या इशारा हमें दे रहा है और हम समझदार कैसे बनना है. तो देखिए, मान लीजिए पहला प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा उन्होंने पूछा कि इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक क्वाड्रिलैटरल है. इन अ क्वाड्रिलैटरल ACBD, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्स एंगल A. फिगर आपके सामने दे रखा है. शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD.
व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि ए बी ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए बी डी लिखते हैं। ये गलत है बच्चों, इक्वल टू नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंट टू है। तो ये थी, दिस इज व्हाट इज क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जब बात आती है, लेट अस सी सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। देखो व्हाट आई डू इज इशारा, इस शब्द को भूलना मत, इशारा इन अ क्वाड्रिलैटरल ए सी बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी। देखिए मैंने प्रॉब्लम जैसे ही पढ़ा, आधा मैंने तो क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व किया। क्या किया देखो, पहला इशारा मुझे क्या दिया है, ए सी इक्वल टू ए डी, उसको नोट कर लिया, ए सी इक्वल टू ए डी पहला इशारा था, पहला इशारा मैंने नोट कर लिया। नोट करके मैंने तुरंत क्या लिखा वहाँ पर, गिवन लिख दिया। चलो हो गया फटाफट, पहला काम खत्म। सर दूसरा इशारा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन। अगर ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, तो एंगल सी ए बी और एंगल डी ए बी या फिर बी ए डी इक्वल होगा। यानी ये दो एंगल इक्वल हो गए। यानी वही मैंने लिखा, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए इंप्लाइज एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो ए बी अगर एंगल ए को 2 कह देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट है ये। तो देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। अब मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 2 तो उन्होंने ही दे दिया इशारा, अब सिर्फ हमें तीसरा कौन, सीरियल का नाम तो सुना होगा आपने, यहां पर भी हमको तीसरा कौन, हु इज द थर्ड पर्सन, हु इज द थर्ड साइड, हु इज, व्हाट इज द थर्ड एंगल। क्या हमारे पास ऐसा है? हाँ है। कौन सा है? ये वाला है। देखिए तो बच्चों, देखिए तो बच्चों, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, ये 2 ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर ये वाली साइड के बराबर है, बराबर है। ये वाली साइड दोनों के अंदर कॉमन है और ये वाला एंगल दोनों के अंदर है। यानी क्या हुआ, AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC, दोनों ट्रायंगल के अंदर AC है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, कॉमन साइड। कॉमन साइड हमेशा यू मस्ट एंड शुड राइट द रीजन, ये लिखना अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी टू राइट इट। सो सी व्हाट आई हैव डन इज, इन दीज 2 ट्रायंगल्स, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, this side is bisecting it, so angles are equal, one side is common. That means 2 sides of one triangle and one including angle between the equal sides are equal, and therefore what I am writing here is, therefore what I am writing, from equation 1, 2 and 3, first equation says AC equal to BD, second equation says CAB equal to DAB, third equation says AC equal to AC. So this equal to this, this equal to this and this equal to this. So from first, second and third equation I can say that these 2 triangles are congruent. So condition is 2 sides and one including angle, that is SAS rule, SAS congruency rule. So first part is over. Now what about the second part, sir? Second part says, what can you say about BC and BD? See children, when I say the triangles are congruent, then the remaining automatically will be equal. That means what? अगर मैं कहूँ कि 2 ट्रायंगल congruent है बच्चों, तो बचे हुए के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली congruent होंगे वो। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सर ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा, ये वाली साइड इसके बराबर ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 6 के 6 एलिमेंट्स आपको नापने की हर बार ज़रूरत नहीं है, आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। और वो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट है
कि 3 ले लो और 3 बाई 3 एंड गेट 3 फ्री है, तो हमने 3 हमने ले लिया तो बाकी के 3 इक्वल होंगे। तो इसीलिए अगर वो पूछ रहे आपसे कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, वी कैन से दैट बी सी इक्वल टू बी डी, और इसका कारण होता है सी पी सी टी सी। क्या होता है वो? आप बोलोगे सर सी पी सी टी सी क्या होता है सर? सिंपल है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। क्या है वो? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। तो देखिए हमने इस तरह से प्रूव किया, तो समझदार को इशारा काफ़ी है, मेरा शब्द आखिर तक याद रखना। ये दो इक्वल उन्होंने दे रखा था, उन्होंने दे रखा था, ये बाइसेक्ट बोलकर इशारा दिया, तो हमने कहा सर अगर आप बाइसेक्ट कह रहे हो तो ये दो एंगल इक्वल है। सर तीसरा साइड तो कॉमन है, यानी किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात खत्म। तो बचा हुआ साइड सर बचा हुआ साइड ऑटोमेटिकली ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा? सी पी सी टी सी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। चलो अगला इशारा क्या है? मैंने इशारों को बॉक्स में बंद कर रखे रखा है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल। बच्चों ए बी सी डी को क्या बोल रहे हैं? वो क्वाड्रिलैटरल है, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, यानी ए डी की लंबाई बी सी के बराबर है। फर्स्ट इशारा तो मैंने उसको नोट कर लिया, जो वो कह रहा है वो पहले नोट किया करो। फिगर बनाना है, नोट कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, आपने कोर्ट में देखा होगा अक्सर बोला जाता है पॉइंट टू बी नोटेड, तो मैं भी आपसे यही कहूँगा पॉइंट टू बी नोटेड। कौन सा पॉइंट टू बी नोटेड? फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज व्हाट? ए डी इक्वल टू बी सी, फाइन। एंड दूसरा इशारा एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, यानी देखो क्या हो गया, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल व्हाट इज इट? सी ए बी। देख लो क्या दिया है यहाँ पर, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लिया। दो तो उन्होंने दे रखा है, तीसरा कौन? हु इज द थर्ड पर्सन? टू साइड्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। हाँ बच्चे हाथ ऊपर कर रहे हैं, सर पता चल गया सर, क्या है? सही कह रहे हैं आप लोग, क्या पता चला आपको? हाँ जोर से बोलो। सर ए बी कॉमन है सर दोनों ट्रायंगल के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि ए बी इक्वल टू ए बी, ये होगा तीसरा इक्वेशन। इसको हम कहते हैं, बिकॉज ये क्यों ऐसे हुआ? कॉमन साइड, कॉमन साइड। देखो बच्चों पूरे प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट इशारा भी उन्होंने दिया, सेकंड भी उन्होंने दिया, सिर्फ हमने किया तो क्या किया? ये इसके बराबर है, उन्होंने ही कहा है। ये एंगल इसके बराबर है, उन्होंने ही कहा है। सिर्फ हमने क्या कहा यहाँ पर? ए बी इक्वल टू ए बी। सिर्फ ए बी इक्वल टू ए बी कहा है बच्चों, बाकी तो 2 पॉइंट्स तो उन्होंने दिया है। फर्स्ट तो मैंने पहले से ही दे रखा है, सेकंड सर पहले से ही दे रखा है, हमने सिर्फ इसको लिखा। और आप देखिए कि हर प्रॉब्लम में ये स्टेप फिक्स रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो तो क्या हुआ, ये ट्रायंगल आप देखो कौन सा ट्रायंगल है? वो ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी ट्रायंगल है और बी ए सी ट्रायंगल है। देखिए थोड़ा गौर से आप देखिए, आंखों से जब थोड़ा गौर से आप देखो कि ये साइड इक्वल हो गया, ये साइड दोनों में कॉमन है, एक साइड दोनों में कॉमन है बच्चों, एक साइड दोनों में कॉमन है, और दोनों के बीच वाला एंगल जो है वो भी इक्वल है। यानी क्या हुआ, थोड़ा ध्यान देना, इस ट्रायंगल का 2 साइड और बीच वाला एंगल, इस ट्रायंगल का 2 साइड और बीच वाला एंगल इक्वल होता है। तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा? यस ए यस। तो पहले से मैंने लिख के रखा सारा स्टेप। सर आपने पहले से क्यों लिखा? कोई नई बात समझा तो नहीं रहा हूं मैं? कौन सा नई बात मैंने समझाई? ये तो ऑलरेडी दिया है ना, इट्स ऑलरेडी गिवन।
Already the hints are given to you, my dear children, with the help of the clues, with the help of the hints. The only thing that you have mentioned here is AB equal to AB. Other rest of the things are automatically given. So you are not doing nothing new. Whatever is given, the same thing you are writing. Okay. Now let us see. So this is over. First part is over. Now what does second part says? Once I say these two triangles are congruent, children, then BD equal to AC. Automatically it follows. Automatically it follows. I need not tell you. Can you tell me the reason? Can you tell me the reason? Can you tell me the reason? Yes. Yes. C, P, C, T, C. This is the reason. Sir, what about the angle, sir? What about this angle ABD? And what is it? Angle BAC. They are also equal. When I say that triangles are equal, congruent, then I need not have to again tell you specifically the other things. Other things automatically follows. So again, the reason is C, P, C, C, T, C, P, C, T, C. कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया। तो अगर बड़ी बड़ी बातों में कहूँ तो देखो, सादी भाषा में अगर कहूँ ना, मैं मैथ्स की भाषा में अगर बात नहीं करूँ, क्या सर ये साइड इसके बराबर है सर, ये साइड कॉमन है सर, बीच वाला एंगल इक्वल है सर, दो साइड के बीच वाला एंगल, दो साइड इक्वल और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो सर यस के तहत वो कॉन्ग्रुएंट है। एक अगर मतलब अगर मैथ्स की भाषा में न कहना चाहूँ तो सर टू साइड्स आर इक्वल सर, वन एंगल इज इंक्लूडिंग देम इज इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट, दैट्स ऑल। तो ये पूरे दोनों प्रॉब्लम का जो सारांश है वो इतना ही है, वेरी सिंपल। तो ओके, तो समझदार को इशारा काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज AD and BC are equal. Point to be noted. Point to be noted. Point to be noted. Already noted. Already noted. AD equal to BC है सर। इक्वल आपने कहा, हमने इक्वल लिख दिया। Perpendicular to the line segment AB. Point to be noted. परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। चलो सेकंड पॉइंट, इशारा। दो चीजें तो मिल गई, तीसरा ढूंढना है। शो दैट CD बाइसेक्स AB। CD क्या है, बाइसेक्स AB। सर आंसर मिल गया सर, मिल गया, वेरी गुड। देखो तो अभी ये वाली साइड इसके बराबर है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने दिया है। सर ये वाला एंगल इसके बराबर है। सर एक साइड और एक एंगल तो बराबर हो गया सर, तीसरा एंगल कहां से लाओगे सर? दिखा आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में आपने। यानी क्या होगा, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, और शॉर्ट में उसको लिखा जाता है VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से वही इक्वेशन 1, 2 and 3। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है देखो थोड़ा, AOD congruent to AOD congruent to BOC। आप यहां देख सकते हो कि A एंगल B के बराबर है, O एंगल O के बराबर है, C एंगल D के बराबर है। तो यहां पर हमने क्या हुआ देखो, टू एंगल्स, वन नॉन इंक्लूडिंग साइड,
दो एंगल्स बराबर है और एक नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? AAS, आस, AAS। दो बातें तो उन्होंने ही दे रखी है बच्चों, दिस इज 90, दिस इज 90 ऑलरेडी गिवन टू यू, दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड इज इक्वल ऑलरेडी गिवन टू यू। कौन सा बहुत इशारा आपने ढूंढा यहां पर? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए 2 पॉइंट ऑलरेडी मैंने लिख के रखे थे, तीसरा सिर्फ ढूंढना था। तीसरा कौन? अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों तो मैं कह सकता हूं आपको कि CD बाइसेक्स AB, AB के 2 बराबर हिस्से होने चाहिए। तो सिंपल है बच्चों, अगर ये 2 ट्रायंगल इक्वल हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सिंपल मैं कह सकता हूं कि OB और OA इक्वल हो जाएंगे। क्यों? CPCTC, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। एक बार प्रूव कर दिया तो बाकी के सब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी बिकॉज CPCTC। दिखाई नहीं दे रहा है? जरूरत है क्या CPCTC? चिंता मत करो, CPCTC बोल दो, हो गया CPCTC। तो बच्चों अगर OB इक्वल टू OB हो गया, यानी शो दैट CD बाइसेक्स AB, अगर OB इसके बराबर हो गया तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? CD बाइसेक्स AB। दैट्स ऑल, बस इतना ही तो है। इशारा, हर बार मैं यही कहता रहूंगा, इशारा इशारा और इशारा। अब अगला इशारा क्या बता रहा है? L and M आर 2 पैरेलल लाइंस। ये है आपका L और ये है आपका M। L और M पैरेलल है। दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। are intersected by another pair of parallel line P and Q, show that triangle ABC और triangle CDA क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। सर कैसे बता सकते हैं? मिल गया आपको आंसर? कुछ बच्चों के हाथ तुरंत सीधे ऊपर हो गए हैं। सर मैं बताऊंगा। आई वांट टू से वेरी फाइन चिल्ड्रन, इफ यू अंडरस्टूड इट, वेरी सिंपल चिल्ड्रन, this is parallel to this, this is parallel to this. Now I can say that this angle is equal to this angle. Why? Alternate interior angles. You know, when two lines are intersected by a transversal, the line angles are, alternate interior angles are equal. Sir, next one. सर ये वाला एंगल इसके बराबर है, Z बन रहा है कि नहीं देखना है आपको। क्या देखना है आपको? देखो ये ब्लू कलर का Z बन रहा है बच्चों, ब्लू कलर का Z बन रहा है। ब्लू कलर का Z आपको दिखाई दे रहा है, उल्टा Z, यानी ये उल्टा Z वाला एक अल्टरनेट एंगल होगा। यानी कौन सा एंगल होगा? थोड़ा ध्यान देना बच्चों। DAC, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q। इसीलिए देयरफॉर फर्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। कारण है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट दूसरा Z दिखाई दे रहा है आपको? सर हाँ, ये देखिए आप थोड़ा, ये है 1 2 3 उल्टा Z। तो उसमें क्या हो गया? एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। कारण वही होगा। दो तो मिल गए, तीसरे की तलाश है। तीसरा आपको मिल गया। डिड यू गेट द थर्ड वन? सर वेरी सिंपल सर, ये ट्रायंगल के अंदर और ये ट्रायंगल के अंदर ये इसके बराबर है
ये इसके बराबर है, एक साइड कॉमन है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि AC इक्वल टू AC। कारण है बिकॉज कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर वही रिपीट होगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रूल कौन सा यूज किया, दो एंगल्स और बीच वाला साइड, टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स एंड वन इंक्लूडिंग साइड, ASA। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हमने, ASA, आसा। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और एक साइड क्या है, कॉमन है। तो किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल और बीच वाला साइड इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। वही आपको क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों चारों प्रॉब्लम्स या कल वाले वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आएंगे सब में इशारा, इशारा, इशारों को आप समझ लोगे तो सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप you might have enjoyed my today's class.